Hello and welcome friends. Welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Bohra. You can follow me on Facebook, Instagram and YouTube also. Okay friends, I just give you the written notes of law topics for the law students especially. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे. यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू हैव स्टार्टेड योर स्टडीज ऑल्सो बिकॉज द न्यू सेशन of the new year, second year, and has come started, and this is the odd semester, means third semester. So I am giving you the notes of the second year third semester today. This is the English topic of subject is English and part 1. This is video part 1 and I am giving you the starting topic of the English third semester. This is general principles of effective communication. Okay friends, please listen it carefully, and if you like my video and my notes, please don't forget to press the like, share and subscribe button. Okay, let's start our today's topic. This is general principles of effective communication. I will just explain you what are the principles of general communication, effective communication especially. How you should communicate with people, how you can impress with your effective communication while in a meeting, for any purpose, for anything you have gone for the specially particular purpose, like for a meeting, for giving an offer, for a contract, for a motivation meeting, or like etc. So this is very important topic. You should listen it very carefully, and this question comes also in the exams. So you can write it in your notebooks. You can take your notebooks and pens with you right now. So you please write down the topics and answers. I am giving you the point to point notes only. Okay friends, please listen it carefully. Let's start our topic. Meaning of communication is the first topic. I'll tell you what is the meaning of communication. So let's start. Communication is to a corporate what flying is to a bird or what roaring is to a lion. Means communication वो चीज़ है जैसे कॉरपोरेट कंपनीज़ में कम्युनिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि एक पक्षी को उड़ने के लिए पंख और एक शेर की आवाज़. तो इसका कम्युनिकेशन का एक जो है कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि पक्षी कैसे उड़ता है आसमान के अंदर और शेर कैसे दहाड़ता है. ठीक है ना. तो कम्युनिकेशन एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कॉरपोरेट कंपनी के अंदर वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक कम्युनिकेशन जो है लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कंपनी की मीटिंग्स के लिए, कॉरपोरेट के लिए, मतलब हर जगह पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है फ्रेंड्स. तो कंपनी का कंपैरिजन के लिए आप सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे तो इट विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ओके, ऑन योर आंसर्स ऑल्सो. सो कम्युनिकेशन एक कॉरपोरेट के लिए वैसे है जैसे पक्षी के उड़ने के लिए पंख है, वो कैसे उड़ता है, और शेर कैसे दहाड़ता है. आगे मूव ऑन. Organizations and clients like to employ and work with subordinates who are good at communication. मतलब organizations और clients जो होते हैं वो ऐसे ही persons को, subordinates को employ करते हैं या उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जो कि जिनकी communication बहुत अच्छी होती है. ठीक है फ्रेंड्स. हु आर गुड एट कम्युनिकेशन मीन्स जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. इसीलिए ज़्यादातर जब वैकेंसीज निकलती हैं तो स्पेशली मार्केटिंग के लिए या ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जहां कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है. तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को अपने, या कैसे आप अपनी कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे कैसे हाई हाइट्स पे लेके जा सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द promoting your business or your company or anything you are doing. This is very good point for the promoting. Okay, move on next. On the contrary, bad communication may lead into teams
feeling they are not rewarded in proportion to the effort put in by them. मतलब बैड कम्युनिकेशन में टीम्स को ये लगता है कि वो जो अपना एफर्ट दे रहे हैं उन्हें उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन बैड कम्युनिकेशन का तो बैड इफेक्ट ही आएगा ना. तो वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीज़न यही है कि दिस इज़ द वे डेली एक्टिविटीज़ आर कम्युनिकेटेड अक्रॉस टू द मैनेजमेंट एंड क्लाइंट्स अलाइक. मतलब कि आपको जो डेली एक्टिविटीज़ करनी है, कम्युनिकेट करनी है मैनेजमेंट और क्लाइंट्स के साथ, वो एक तरह से अच्छे से ढंग से, इस ढंग से करनी है कि वो गुड कम्युनिकेशन में आए, बैड कम्युनिकेशन में ना आए, ताकि आपको अच्छे से रिवॉर्ड्स मिले. कंप्लीटिंग द वर्क विद डिग्निटी and diligence is one thing, but establishing the correct communication channels for day-to-day activities is an essential factor which separates the brain from masses. कहने का मतलब इसमें ये है कि अपना काम को पूरा डिग्निटी और डिलीजेंस से करना एक तरफ है, लेकिन करेक्ट कम्युनिकेशन का जो चैनल है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सेपरेट करता है ब्रेन्स को फ्रॉम मासेस. का मतलब है कुछ स्पेशल माइंड्स होते हैं जो दुनिया से अलग होते हैं, जो जैसे कि कुछ लोगों का एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि मिस्टर संदीप महेश्वरी का आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कम्युनिकेशन है जिनका, या कुछ लोगों का ब्रेन इतना अच्छा है, इंटेलिजेंट माइंड के होते हैं जो लोग, जो अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं, मतलब नॉर्मल दुनिया के नॉर्मल लोगों से अलग करते हैं, तभी वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का इसीलिए इम्पोर्टेंस माना गया है, इसीलिए ये टॉपिक आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि लॉयर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोर्ट के अंदर क्लाइंट्स से और हर एक से जिनसे भी वो मिले, उनका इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ना चाहिए बात करने का, उनको इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो इतने अच्छे से समझाएं अपने क्लाइंट को या कोर्ट को, ताकि हर कोई उनकी बात से इम्प्रेस हो जाए और एग्री करे. सिर्फ इम्प्रेस ना हो, एग्री करे, ताकि आप जो आप कहना चाह रहे हो वो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, जो आपका मोटिव है समझाने का, और वो इस ढंग से आप समझाओगे कि वो सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और आपकी बात को मान ले. ठीक है, आपको फॉलो करने लग जाए. ओके, कम्युनिकेशन गोज अ लॉन्ग वे इन मेकिंग और ब्रेकिंग ट्रस्ट इन कैरिंग आउट बिजनेसेस. मतलब कहने का वही मीनिंग है इसमें. कम्युनिकेशन जो है एक लंबे वे में जाता है कि अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया है तो वो बन जाएगा, और नहीं अच्छे से किया तो वो टूट जाएगा ट्रस्ट उसके अंदर. तो आपके बिजनेस को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपने स्टार्टिंग से ही अच्छा इंप्रेशन डाल दिया है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, आपने इतने अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, आपने जो भी आप समझा रहे हैं, आपका टॉपिक है, कोई टीचिंग में टीचर्स हैं, उन्होंने अगर अपने टॉपिक को इतने अच्छे से समझाया, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, किसी की बात बच्चों को इतने अच्छे से समझ में आती है कि उस टीचर को बच्चे पसंद करने लग जाते हैं, और किसी की बात नहीं समझ में आती तो बच्चे उनका लेक्चर अवॉइड करते हैं. तो यही एक डिफरेंस है कम्युनिकेशन का और एक समझाने के वे का, कि आप कितने अच्छे से, कितने इम्प्रेसिव वे में यू टीच और यू एक्सप्रेस योर वर्ड्स और योर फीलिंग्स और यू एक्सप्लेन योर अबाउट योर टॉपिक. ओके, तो दिस इज़ द लॉन्ग वे that you make or break the trust of the carrying out the business or for anything. Okay, moving on to next slide. There are 5 basic principles of effective communication. 5 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है. आपको ये मैं बता रही हूँ, इनको आप लर्न कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ के लिए हो, ये MBA के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी हो सकते हैं. हर सब्जेक्ट, हर फील्ड में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो काम आता है. ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंश्योर दैट योर आइडिया इज़ रेलिवेंट. मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आप जो आइडिया दे रहे हैं, जहाँ पे भी आप अगर मीटिंग में कहीं होस्ट हैं, होस्ट का एक वैल्यू बहुत अच्छी होती है. आपने देखा होगा ऑडिटोरियम्स के अंदर, या कोई भी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग है या कोई भी है जहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी है सुनने के लिए, तो जो बोलने वाला पर्सन है, स्टेज पे खड़ा है जो पर्सन जो बोल रहा है सामने खड़ा होके, अगर उसने इतना अच्छा वे में बोला है, उसका आइडिया इतना अच्छा है, रेलिवेंट है कि भाई जो जिस पर्पस के लिए आप आए हो वहाँ बोलने,
उस पर्पस को आपने इतना इफेक्टिवली लोगों के आगे समझाया है, तो आपसे लोग इतने इम्प्रेस होंगे, आपकी इतनी तालियां बजेंगी, आपको लोग इतना फॉलो करेंगे कि आपको इतना पसंद किया जाएगा। तो आपका इंश्योर यही करना है कि आपका आइडिया रेलिवेंट हो, मीन्स जो आप बोलने आए हो उसको आपने इफेक्टिवली इतने अच्छे वे में लोगों को समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नो मैटर हाउ अपीलिंग और टेम्पटिंग योर आइडिया लुक्स, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका आइडिया जो है कितना अपीलिंग और टेम्पटिंग है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड चेक विदाउट जंपिंग टू अदर थिंग्स इज हाउ रेलिवेंट इज़ योर आइडिया टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दूसरी तरफ आगे बढ़, सबसे पहली बात यही है कि भाई आपको कहीं और आगे बढ़ने से पहले, आपको जंप करने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरा आइडिया कितना रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ आइडिया दे रहा हूँ तो वो मेरे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए मेरे बिज़नेस की कितना अच्छा है, या मैं अपनी कंपनी में अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी कंपनी के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं अगर मेरे अपने बॉस के आगे या मीटिंग में, जनरल मीटिंग हो रही है या कोई भी मीटिंग हो रही है, उसके अंदर मैं अगर कोई आइडिया दे रहा हूँ तो मेरा आइडिया कितना रेलिवेंट है, उससे मिलता जुलता है, कितना अच्छा आइडिया है कि उससे लोग एक्सप्रेस हो, इस ढंग से एक्सप्रेस करूँ कि लोग इम्प्रेस हो जाएं उससे। ठीक है, उसको फॉलो करें, एक्सेप्ट करें उसको। तो कलेक्ट पास्ट यूज़र एक्सपीरियंसेस एंड ड्राफ्ट द एरियाज विच माइट नीड इम्प्रूवमेंट्स। मैं आधा आधा इसीलिए आपको सेंटेंस समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। कलेक्ट कीजिए अपने पास्ट यूज़र एक्सपीरियंसेस, मतलब लोगों के यूज़र, आप पहले जब आइडिया एक बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आपको पहले ये देखना है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस, पिछले एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। ठीक है, उनको ड्राफ्ट कीजिए, उन्हें लिखिए, वो सारे एरियाज़ जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो सारे लिखिए, उनके बारे में आप सोच समझ के एक प्लान बनाइए, एक अच्छा आइडिया बनाइए। एंड कॉमन टू मोस्ट कस्टमर्स, और जो कि कॉमन है मोस्ट कस्टमर्स के लिए, जिन जिन जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उन सबको एक ड्राफ्ट बना के लिखिए अपने पास। ठीक है, बेस योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन रेलिवेंट क्वांटिटेटिव डाटा एंड फिगर आउट विच फैक्ट्स मैटर एंड इंक्लूड दैम। मतलब आर्ग्यूमेंट्स को जो बेस है आर्ग्यूमेंट्स का, ऑन रेलिवेंट क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर आप एक डाटा बनाएंगे, उसको फिगर आउट करेंगे, फिर वो सारे फैक्ट्स जो कि मैटर करते हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको इंक्लूड कीजिए अपने ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, सी इफ़ यू कैन गेट रियल कस्टमर स्टोरीज, अगर आपको कस्टमर्स की रियल स्टोरीज पता चलती हैं तो उन्हें कलेक्ट कीजिए। एनसीडॉट्स एनेक्डोट्स सपोर्टिंग योर केस, एंड एनेक्डोट्स होती हैं जो उनकी छोटी छोटी कहानियाँ या उनके एक्सपीरियंस या उनकी बातें हैं जिनसे आपकी केस को सपोर्ट मिले, उन सब बातों को लिखिए ताकि आप अपनी मीटिंग में या जहाँ पे आप बता रहे हैं वहाँ पे इन चीज़ों का आप एग्जाम्पल दे सकें। ठीक है, अप्लाई एप्टली बैकिंग दोज विद फैक्ट्स वुड बी एन आइसिंग ऑन द केक, मतलब इन सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को, कहानियों को और अच्छे से फैक्ट्स को सबको इंक्लूड करके जब आप अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बेस पे आप आइडिया देंगे। ठीक है, तो वो एक केक के ऊपर आइसिंग की तरह, एक क्रीम की तरह काम करेगा। जैसे केक के ऊपर क्रीम लगी होती है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, केक बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही जब आप अपनी बातों को, अपने आइडिया को, लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करके अच्छे अच्छे फैक्ट्स डालेंगे और लोगों की कहानियाँ ऐड करेंगे, तो आपकी बात रखने का तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, वो रेलिवेंट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये एक तरीका होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि आपका आइडिया रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रिंसिपल है फ्रेम योर पर्सपेक्टिव, मीन्स कि आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको फ्रेम करना होगा कि आप क्या कहना चाहते हो, किस ढंग से कहना चाहते हो, उसका एक फ्रेम कीजिए उसे। मैनी विल आर्ग्यू दैट यू शुड गो इनटू अ मीटिंग विद एन ओपन माइंड एंड अनबियास्ड, मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई मीटिंग में ओपन माइंड से चले जाना चाहिए, दिमाग फ्री रख के जाना चाहिए और अनबियास्ड जाना चाहिए। ठीक है, अनबायस्ड मतलब कि आपको किसी के भी पर्टिकुलर फेवर में नहीं होना चाहिए, ओपन माइंड से जाना चाहिए। लेकिन ये सच बात है, दिस इज ट्रू, बट इट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट रिसर्च और फ्रेम योर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बात कहने जा रहे हो, अगर आपको मौका मिल रहा है वहाँ बोलने का,
तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दोगे, आप बिना रिसर्च किए या बिना फ्रेम किए चले जाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है बोलने का वहाँ, और आपको बोलने के लिए कह दिया जाए तो आपकी कोई रिसर्च अगर नहीं कर रखी तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, आपका इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा। तो उससे पहले आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। आई हैव सीन पीपल हु शो अप एट मीटिंग्स बट आर अनेबल टू ऑफर अ वेल कंसिडर्ड ओपिनियन। मतलब मैंने देखा है लोगों को कि भाई लोग जो होते हैं मीटिंग्स में चले तो जाते हैं, वो शो भी करते हैं, लेकिन उनका बोलते भी हैं, लेकिन उनका अनेबल टू ऑफर अ वेल कंसिडर्ड ओपिनियन, मतलब उनका जो ओपिनियन होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता, वो अच्छा सा ओपिनियन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बिवेयर यू रिस्क बीइंग लेबल्ड अ डॉयर इफ़ यू कैन नॉट ऑफर एन इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव ऑन द टेबल। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे जाके बोल के ना आ जाएं कि भाई आप ऐसा गलत अपना इंप्रेशन ना डाल के आ जाएं, उनकी टेबल पे ऐसा पर्सपेक्टिव ना छोड़ के आएँ जिससे कि आपके ऊपर एक रॉन्ग डॉयर का लेबल लग जाए कि आपने गलत बोला है, आपको बोलना नहीं आता, आपका यूजलेस था आपका बोलना, ऐसा लेबल आपके ऊपर ना लग जाए। ठीक है, तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए माना जाता है कि आपको ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप वहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या आइडिया दे के आए हैं। दिस डायरेक्टली मीन्स दैट यू आर समवन इल सूटेड टू बीइंग अ लीडर। इससे साफ ये जाहिर हो जाएगा अगर आप गलत चीज़ बोल के आ गए, आपका इफ़ेक्टिव नहीं है, आपका रेलिवेंट नहीं है, वहाँ पे आपने फ्रेम नहीं किया, रिसर्च नहीं की कुछ भी, और आप बोल के आ गए मीटिंग के अंदर या कहीं पे भी आप लोगों को समझाने गए हो, तो इससे आपका इंप्रेशन यही आएगा कि आप इल सूटेड हो, मतलब आप सूट नहीं करते इस चीज़ के लिए, आप लीडर बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, आई हैव सीन सिचुएशंस वेयर एम्प्लॉयर्स मेंशन इन देयर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट दे आर सीकिंग आउट द फॉक्स हु आर को थिंकर्स। ज़्यादातर सिचुएशंस में ये ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मेंशन करते हैं अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन में, जब वो जॉब की वैकेंसी निकालते हैं एम्प्लॉयर्स, वो ज़्यादातर ये लिखते हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो को थिंकर्स हो, मतलब हमारे बराबर का सोचते हो, हमारी कंपनी के लिए हमारे जैसा सोचते हो, जैसा हम अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, बिजनेस को, वैसा ही वो भी हमारे जैसा सोचते हैं। तभी वो ऐसे लोगों को रखते हैं ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपने परेशानी ना झेलनी पड़े ऐसे गलत लोगों को रख के जिनका कम्युनिकेशन या जिनकी रिसर्च या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, जिनके अंदर अच्छे स्किल्स, गुड स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट योर रेपुटेशन टू रिफ्लेक्ट दैट रोल देन एज अ थंब रूल कम रेडी टू मीटिंग्स and have a point of view. This will also help you in asking relevant questions. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी अपनी रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो उस रोल में, जैसे कि एक थंब रूल होता है, कम रेडी टू मीटिंग्स, मतलब आइए मीटिंग्स के लिए तैयार होके आइए और ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि आपका जो है रेपुटेशन जो रिफ्लेक्ट करे कि हाँ आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें, वेट करें कि हाँ आप आ रहे हैं बोलने के लिए। ठीक है, आप अपना अच्छा आइडिया देने आ रहे हैं और लोग उससे जिससे इम्प्रेस होते हों। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस। आपको इससे हेल्प मिलेगी, आप रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे उनसे कि वह लोगों की क्या ज़रूरतें हैं या आपको क्या पूछना है, आप आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आगे हर चीज़ को, अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कैसे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, उसके लिए आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो आपका इफेक्टिवनेस जो होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, लोगों पे अच्छा इफेक्ट डालेगी। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, चूज़ योर मीडियम। आप अपना पहले मीडियम चूज़ कीजिए। समवेयर अबव आई एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ नोइंग योर कस्टमर और ऑडियंस। मतलब एम्फेसाइज करना चाहिए कि नीड क्या है लोगों की, कि भाई कस्टमर और ऑडियंस का कि जानने की इच्छा क्या है उनकी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो क्या चाहते हैं लोग, ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लोग क्या चाहते हैं। द मीडियम वाया योर ऑडियंस via which idea is communicated plays a vital role in retention of the idea in your audience mind. Means कि मीडियम, जिस मीडियम से आप अच्छे से बोल रहे हैं, जिस मीडियम से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस आइडिया के लिए कि भाई ऑडियंस के माइंड में वो आइडिया कैसे जा रहा है, आप या फिर उनके माइंड से क्या निकाल रहे हो। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव अ लाइफ टू योर आइडिया। मतलब ऐसा करने से आपके आइडिया को लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, कि भाई आप अपने आइडिया को आगे कैसे वो फॉलो कर सकेगा, अप्लाई कैसे कर सकोगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के लोगों के साथ डील कर रहे हो,
जिनको जो वैल्यू करते हैं नंबर्स की, जिनको नंबर्स की ज़्यादा नॉलेज है, वैल्यू करते हैं, समझते ज़्यादा हैं। कंसीडर यूजिंग लॉट्स ऑफ स्मार्ट एक्सेल टू प्रेजेंट योर आइडियाज़। तो अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोगों से मिलने जा रहे हैं, जैसे बैंक के अंदर आपकी जॉब है, तो उनका मतलब तो उनका काम तो सिर्फ नंबर से रिलेटेड है ना, मनी से रिलेटेड, पैसा मीन्स नंबर्स। उनके लिए, बैंक के स्टाफ के लिए वो एक नंबर्स हैं, सिर्फ पैसा नहीं है वो तो अपने चीज़ों को नंबर्स के हिसाब से बोलेंगे। तो आपने अपना एक्सेल इतना स्मार्टली रखना है, प्रेजेंट करना है अपने आइडियाज़ को, जिसके आपके आइडियाज़ इतने अच्छे होने चाहिए कि आप उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स की नॉलेज आपको होने चाहिए। इन केस यू फाइंड गुड नंबर ऑफ पीपल हु वैल्यू ग्राफिक्स, अगर आपको ऐसे नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि ग्राफिक्स को वैल्यू करते हैं, वो कंसीडर करेंगे मेल्टिंग योर आइडियाज़ इन योर यूज स्टोरीज दैट वीव्स टुगेदर फैक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन वेज पीपल कैन गेट्स लॉस्ट इट। इतने अच्छे से आप सारी स्टोरीज़ को इंक्लूड करके अपना आइडिया दीजिए कि लोग उसमें खो जाएं, उसमें इतना इंटरेस्ट लोगों का जाग जाए कि लोग उसके अंदर खो जाएं कि हाँ वाकई कितनी बढ़िया बात इस इंसान ने समझाई है, कितना अच्छा आइडिया दिया है। ठीक है, तो ये एक वे होता है अपना मीडियम बताने, मीडियम किस मीडियम से आप समझा रहे हैं। मीडियम में आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है, वे हो सकता है, प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं आप, तो ये चीज़ें मीडियम्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द फोर्थ प्रिंसिपल इज व्हाई नॉट बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, मतलब इंसानों का साइंटिस्ट, जो इंसान के दिमाग को, बॉडी के उसके हलचल, बॉडी की फीचर्स से देख के, उसके हाव भाव से देख के समझ जाता है। तो आप अपने सामने वाले को कैसे समझते हो, उसको देख के, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी आंखों को देख के, उसके बिहेव को देख के आप कैसे समझते हो, ये चीज़ एक बहुत थ्योरेटिकल, बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है। ठीक है, आप अगर ऐसा समझ जाएंगे कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, तो वो मनोवैज्ञानिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है कि भाई आपको लोगों का दिमाग पढ़ रहे हो, आप लोगों के फिजिकल, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर से, बॉडी के लोगों के हाव भाव से आपको समझ में आ रहा है। यू मस्ट बी टॉट टू मास्टर योर सब्जेक्ट, मतलब आपको पढ़ाया जाना चाहिए कि आप अपने आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपने सब्जेक्ट का मास्टर कैसे बनना है। ठीक है, व्हाई नॉट टेक इट वन स्टेप अहेड एंड मास्टर द ऑडियंस, मतलब एक स्टेप आगे बढ़िए और लोगों के मास्टर बन जाइए जो आपको सुन रहे हैं। दिस इज़ ईजियर सेड देन डन, मतलब सुनने में तो बहुत ईजी है लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल है। बट टू हेल्प यू देयर आर सो मैनी टूल्स विच कैन बी यूज टू लर्निंग अबाउट पीपल, मतलब ये हेल्प कर सकता है इस वे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी लोगों को पढ़ने में, समझने के लिए। व्हाट टॉपिक्स दे ट्रैक, मतलब कौन से टॉपिक लोग सर्च करते हैं। विच पर्सनैलिटीज़ दे वैल्यू, मतलब कौन सी पर्सनैलिटी की वो वैल्यू ज़्यादा समझते हैं, लोगों को कौन से लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, कौन ज़्यादा इंप्रेसिव लोग होते हैं जिनको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये आप उनको देख के, उनकी बातों से उन सबको कलेक्ट कर सकते हो। हाउ दे अप्रोच देयर वर्क, और अपने काम को कैसे अप्रोच करते हैं लोग। इन टॉपिक्स को आप समझ जाएंगे, अगर सीख जाएंगे, अगर ये चीज़ें आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी। थिंक एंड फाइंड आउट व्हाट योर कोलीग्स केयर द मोस्ट, आप ये देखिए और सर्च कीजिए, ढूंढिए कि आपके कलीग्स जो हैं किस चीज़ की ज़्यादा केयर करते हैं। ठीक है, देयर सोशल प्रोफाइल्स, उनके लोगों के सोशल प्रोफाइल्स क्या हैं, उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स भी क्या हैं, देयर ब्लॉग्स, देयर इंटरेस्ट, ऑल्सो टेल अ स्टोरी, मतलब ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जिसके आगे आप बोल रहे हो या जिसको कुछ समझा रहे हो तो उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी चॉइस क्या है, उसके बेस पे आपका आइडिया होना चाहिए। ऑब्जर्व देम एंड लर्न व्हाट एक्साइट्स देम एंड शेप योर आइडिया अकॉर्डिंगली, वही बात है जो अभी मैंने बोली कि अब आप ऑब्जर्व कीजिए लोगों को और उससे आप सीखिए कि लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा एक्साइट करती है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी चीज़ लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया को शेप कीजिए ताकि आपका आइडिया मतलब समझ में आए। तो ये होता है एक माइंड, लोगों का मनोविज्ञान पढ़ना, मनोविज्ञान लोगों के माइंड से, आप जिनको जानते हो कि थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उनकी चॉइस के बारे में रिसर्च कीजिए, फिर उससे आप अपना आइडिया बनाइए अकॉर्डिंगली। ठीक है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी पैशनेट। कहने का मतलब ये है कि कभी भी मतलब पैशनेट हमेशा रहिए, कभी भी अनपैशनेट नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास अपना पैशन होना चाहिए। टेक योर पैशन एंड मेक इट हैपन। इस पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा
इसमें ये बोला गया है कि अपना पैशन लीजिए, आप ये देखिए कि मेरा पैशन है क्या, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे कैसे क्या करना है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने पैशन को डाल सकते हैं, पैशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है दिस इज़ अ क्वालिटी विच शुड कम नेचुरली टू यू। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो नेचुरली इंसान के अंदर आती है, ठीक है, या होती है बाय नेचुरल। नो वन इज़ गोइंग टू स्पेयर देयर हेड ओवर योर बोरिंग बोगस एटीट्यूड। मतलब कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के बोरिंग या बोगस एटीट्यूड को सुने या देखे। ठीक है, बिलीव इट, पीपल विल ओनली पुट मनी इफ़ दे फील कॉन्फिडेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, पीपल लोग जो हैं अपना पैसा तभी लगाते हैं जब वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं? जब आप उन्हें इतने अच्छे से भरोसा दिलाते हो। और भरोसा कैसे दिला सकते हो आप? आपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तभी जैसा आपका कम्युनिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही लोग आप पे भरोसा करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तभी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अपना पैसा लगाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो लोग पैसा बड़ा सोच समझ के लगाते हैं और वहीं लगाते हैं जहाँ पे उन्हें ठीक लगता है। जैसे कि वोट भी उसी को दिया जाता है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, लोगों को भरोसा दिलाता है। चाहे वो पैशनेट, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वोट उन्हीं को दिए जाते हैं ना, चाहे वो आगे काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जब वो लोगों को अच्छे से इम्प्रेस कर देते हैं तभी ज़्यादातर लोग उन्हें उनकी बातों में आके वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक जस्ट सिंपल एग्जांपल है, इसको लेकिन उसमें मत लीजिएगा। वैसे ये मैं आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि बोलने का इंप्रेशन, बातों का, अच्छी बातें आप बोलेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो हर कोई आपको पसंद करेगा। अगर आप किसी की बुराई करते रहेंगे अपनी बातों के अंदर, किसी की वैल्यू डाउन करते रहेंगे, कुछ भी ऐसा गलत करेंगे तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। जैसे कि लॉयर्स के लिए स्पेशली कहा जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स का एक सब्जेक्ट लगता है 7th सेमेस्टर में, वो हमारे लॉयर्स के लिए ही स्पेशली ये बोला जाता है कि उनको कैसे मैनर्स होने चाहिए, उन्हें कहाँ कैसे बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उनके लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही एथिक्स वाली बात हमारे कम्युनिकेशन के अंदर भी आती है कि हमारे एथिक्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, हम किस वे में बात कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। अगर आप अच्छी बात समझा रहे हैं तो अच्छी बातें कीजिए, गलत बात तो आप समझाएंगे नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। ठीक है, आपका वैसे ही वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसलिए अच्छे से समझाइए, अपना पैशन लेके समझाइए। ठीक है, तो इसलिए बेकार बातों का सुनने का लोगों के पास टाइम नहीं है। बिलीव इट, पीपल विल ओनली पुट मनी। पैसा तभी लोग लगाते हैं जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन टेकिंग योर आइडियाज़ फॉरवर्ड। ये इक्वली इंपॉर्टेंट इसीलिए है और अच्छा रोल प्ले करता है आपके आइडियाज़ को फॉरवर्ड करने के लिए कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट कैसे करते हो, तभी आपका आइडिया आगे बढ़ सकता है। इफ़ यू एक्सप्लेन इन अ वे दैट शोज यू आर एक्चुअली इन लव विद द आइडिया रादर देन अबाउट यू बीइंग राइट, दे माइट जस्ट फॉल इन लव विद योर आइडिया टू। कहने का मतलब ये है इसमें कि आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो इस ढंग से कि हाँ, कि मैं अपने आइडिया से, जो मैं आइडिया दे रहा हूँ उसको मैं खुद प्यार करता हूँ, मतलब वो आइडिया इतना अच्छा है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, तो लोग आपको सही समझे बिना वो खुद आपके आइडिया के से प्यार करने लग जाएंगे। मतलब आपका आइडिया इतना पसंद आएगा लोगों को कि वो तालियां ही बजाएंगे और आपकी बात को एक्सेप्ट ही करेंगे। तो आपका इतना अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का आइडिया बढ़िया होना चाहिए कि लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले प्यार से। Being passionate does not mean that you cast high-pitched speeches and see alternate views as a hindrance। मतलब सिर्फ पैशनेट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाई पिच पे स्पीचेस देते, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे से शोर मचा के भाषण देते रहें, ये नहीं होता। बात को रखने के लिए, आपकी बात समझाने के लिए अगर आप धीरे से भी बोल रहे हैं लेकिन आपकी बात में दम है, तो आपका धीरे से बोलने से, अच्छे से बोलने से भी बहुत लोगों के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो सी अल्टरनेट व्यूज़ एज अ हिंड्रेंस, और मतलब आप हिंड्रेंस मत देखिए, अल्टरनेटिव व्यूज़ मत देखिए दूसरों के। जस्ट बीइंग क्लियर माइंडेड अबाउट योर अप्रोच विल सफाइज। आपका जो व्यू होगा, अप्रोच जो होगी वो क्लियर माइंडेड होगी, ठीक है, तो लोगों को वही बहुत सफिशिएंट है, बहुत उसी से ही लोगों का इफेक्ट पड़ जाएगा। आप एक क्लियर माइंड से क्लियर आइडिया दे रहे हैं अच्छा सा, जिसके आगे वैल्यू है, जो आगे फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो पैशन उसके अंदर आपका होना चाहिए कि हाँ, मैंने किस ढंग से, ये मेरा पैशन है कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो आपको बढ़ने के लिए उसमें पैशन होना ज़रूरी है। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारे की 5 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, ध्यान रखिए। देखिए, ये 5th था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी पैशनेट।
इससे पहले वाला था वाई नॉट बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव विज्ञानी बनिए, लोगों को समझिए, दिमाग पढ़िए लोगों का। उससे पहले पॉइंट थर्ड बताया था चूज़ योर मीडियम, आपका मीडियम कैसा होना चाहिए जब आप समझा रहे हैं लोगों को, किस वे में, किस चीज़ को, कौन से टूल्स को यूज़ करके आप लोगों को समझा रहे हैं जिससे लोगों को जल्दी से बात समझ में आए। जैसे कि मैं अपनी पीपीटीज़ बना के पिक्चर्स के थ्रू मैं लोगों को समझाती हूँ, उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, तो लोगों को जल्दी इफेक्टिवली समझ में आता है, मेरा वीडियो लोग पसंद करते हैं। तो उसी वे में आपको इसी ढंग से आपको समझाना है। तो इससे पहले मैंने बताया था फ्रेम योर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव को आप फ्रेम कीजिए। पर्सपेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपने फ्रेम करके आइडिया रिसर्च करके ही जाना है जहाँ पे भी आप अपना आइडिया देने जा रहे हैं। उससे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एंश्योर दैट योर आइडिया इज़ रेलिवेंट। सबसे पहले आपका आइडिया रेलिवेंट होना चाहिए तभी, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव का फ्रेम होना चाहिए कि भी आप कैसे अपनी बात लोगों के आगे रखेंगे, ठीक है। रिसर्च वर्क होना चाहिए मीन्स। उसके बाद आपका मीडियम क्या है, अपना चूज़ करें मीडियम बोलने का। फोर्थ पॉइंट है व्हाई नॉट बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मनोविज्ञानी बनिए, लोगों को समझिए, उनकी बातों को उसके हिसाब से अपना आइडिया दीजिए। और लास्ट पॉइंट है ऑलवेज बी पैशनेट, मतलब हमेशा पैशनेट रहिए, अपना आइडिया को पैशन रखिए और उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल होते रहें। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि आपको ये हर फील्ड के लिए हैं, हर फील्ड के स्टूडेंट के लिए, लोगों के लिए है। आप अपनी बात को किस ढंग से रखते हैं, आपका आइडिया कैसा है, आपकी बात कितने अच्छे से लोगों को समझ में आ रही है, किस ढंग से आप इम्प्रेस कर रहे हैं लोगों को, लोग आपकी बात को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। और रिसर्च वर्क कितनी की है आपने, आपको उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, उसके जो होते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स जो बोलते हैं, जिसको राइट और रॉन्ग पॉइंट्स इसके होते हैं, ठीक है, वो सारे आपको पता होने चाहिए, ताकि आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो इसीलिए इस ढंग से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, आपने देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट्स दीजिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइक ज़रूर कीजिए, अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं लॉ टॉपिक्स के ऊपर, आपको समझ में आएंगे, आप देखिए, आपके लिए रिटन नोट्स हैं उसके अंदर। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन्स। आपको रिटन नोट्स मिलते रहेंगे, और आपको आगे किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, मेरे व्यूज़ नहीं समझ में आ रहे हैं नोट्स, अगर कुछ और टॉपिक्स चाहिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे लॉ के रिलेटेड टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखी है। मैं सब पीपीटीज़ बनाती हूँ, अपने नोट्स देती हूँ, रिटर्न में बहुत मेहनत करके बनाती हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिए, लिखिए, और आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।